आज का दिन आपके लिए ब्रेक थ्रो का दिन है। This is the day for you as a breakthrough day. आज आपके पुराने से पुराने बंधन टूटने का दिन है। The ancient bondage is about to break today in this day. मैं आज आपको दावे से ये कहना चाहता हूँ, With conformity, I want to tell you, अगर आप गरीबी के नीचे हैं, if you are under the poverty, आज गरीबी आपके नीचे आ जाएगी। today the poverty shall come under your feet. हालेलुया। Hallelujah. क्या आप विश्वास करते हैं? Do you believe गरीबी आपके नीचे आ रही है। that the poverty is coming under आमीन you? बोलेंगे आप, बड़ा आमीन बोले आप, Great amen. चिल्ला के बोले आज With आमीन। the loudness, गरीबी amen. आपके, You have subjected the Amen. poverty. ये कैसा प्रचारण है भाई? What kind of preaching is this? गरीबी हमारे नीचे भी आ सकती है। Can this poverty come under feet? अगर आप कर्जे के नीचे आ सकते हैं, If you can come under the depths, तो कर्जा आपके नीचे क्यों नहीं आ the सकता? debt surely can come under you. कौन कौन विश्वास करता है? Who can do it? Praise the Lord. Praise the Lord. अपने हाथों को लाए और बोले पवित्र आत्मा जी, Wave your hands and say, Holy Ghost, हम आपका स्वागत करते हैं। we welcome thee. हम आपका स्वागत करते We हैं। welcome thee. स्वागत करते हैं पवित्र आत्मा से। Welcome Holy Spirit. करिए स्वागत आप पवित्र आत्मा Welcome का। the Holy Spirit. पवित्र आत्मा का स्वागत करिए। Oh, welcome the Holy Spirit. मुझे बहुत आनंद आ रहा है And यार। I'm so very joyful. मैं आपके जीवन में प्रभु की खास आशीष और अनॉइंटिंग को देख रहा हूँ। And I see the anointing and the spiritual blessing of the Lord in your और life. मैं आज आपके जीवन में प्रभु की आशीष की घोषणा भी करता हूँ। And I declare today the blessing of the Lord in your lives. हालेलुया। Hallelujah. आमीन। आपने देखा बिजली में एक कन्वर्टर आता है। There is a converter that is a component in the electricity. वो बिजली को, इलेक्ट्रिसिटी को कन्वर्ट करता है। And that converts the into electricity. That is a converter. आज पवित्र आत्मा की आग आपको छुएगी और आपको कन्वर्ट कर देगी। अमीरों के बीच में आपकी गिनती होनी शुरू हो जाएगी। Fire of the Holy Ghost shall come in you and just transform you, and you shall be amongst the riches. लेकिन ये उन लोगों के लिए है For those जो विश्वास करेंगे। आज who shall believe. अगर आप विश्वास करेंगे And if you shall believe, और आप अपने आप को आज की तिथि डाल के, दिन को डाल के, इस ईयर को डाल के लिख लो कि आज मैं कन्वर्ट कर दिया गया हूं यीशु मसीह के नाम से। put on a date and an year that I have been converted in the name of Jesus Christ. अगर आप कागज पे लिखना नहीं चाहते, If you don't want to write on the paper, आप अपने दिल में लिख सकता है ये। you can inscribe it on your heart. मैं कहना चाहता हूं, आज मैं बाइबल से आपको दिखाऊंगा And I want to say, and I'll show you from the Bible, परमेश्वर का वचन आपके लिए क्या कह रहा what है। is the word of God is saying regarding you. यहाँ कितने अमीर लोग बैठे हैं? How many of you are rich over here? Praise the Lord। Praise the Lord. लेकिन But परमेश्वर हमारा राजाओं का राजा है। for our God is the King of the kings. कितने विश्वास करते हैं कि ऐसा लिखा है बाइबल में? How many of you believe it's written in the Bible? और जब परमेश्वर आपका राजा है, When God is your king, तो आप क्या हैं? who are you then? आप उसके पुत्र हैं, उसकी आप पुत्री हैं। You are the sons and daughters of the Most High. अगर जिसकी आप आराधना करते हो, And the one whom you worship, अगर वो राजा है, and if he is king, तो आप भिखारी क्यों हैं? why are you a beggar then? आप कर्जे के नीचे क्यों हैं? Why are you under the debt? आपका मकान छोटा क्यों है? Why your stature is small? आपका मोटरसाइकिल बिना नंबर प्लेट के क्यों है? Why your motorcycle is without a number plate? आप ट्रेन से बिना टिकट लिए क्यों आते हैं? Why you come in train without borrowing the ticket? आप अपने बस का किराया क्यों नहीं देते? Why don't you give fare for your bus? क्योंकि आपने अपने दिमाग को ये समझा रखा है कि आप गरीब हैं और आप गरीबी में जिएंगे। And for you have made up your mind that you are poor and you shall remain poor. आपने माइंड सेट कर रखा है, A man has been set for you. मैं तो गरीब हूं, Oh, I am poor.
मैं तो गरीब हूं। I am poor. मैं आपको कहना चाहता हूं, आज के बाद ये बोलना तो दूर की बात, ये आपके दिमाग में भी नहीं आना चाहिए कि आप गरीब हैं। And I want to say, let not this thing come in your brain, I'm poor. आप गरीब नहीं हैं। You are not poor. आज आप बादशाह बनने वाले हैं यीशु मसीह के नाम से। You are about to become a monarch today. लेकिन आपको विश्वास करना पड़ेगा। But you will have to believe. आपने कभी बादशाह को देखा है? Have you ever seen an बादशाह emperor? के वस्त्रों को देखा है? Have you ever seen his clothes? जब वो चलता है उसके चलने का अंदाज आपने देखा है? Have you ever seen king walking? आपको किसने बोला है Who told you कि आप गरीब हैं? that you are poor? क्योंकि आपने माइंड सेट किया है। For you have set up your mind. मैं तो दान नहीं दे सकता I cannot give alms, क्योंकि मैं गरीब हूं। but I am a poor man. मैं तो चर्च नहीं आ सकता I cannot come to the church. क्योंकि मेरे पास बस का किराया नहीं है। I don't have the fare for the bus. अगर इसकी बजाय आपने ये माइंड सेट किया होता, And in spite of that, you would have set this इस kind of संडे mind. में चर्च जाऊंगा और बड़ा दान लेके जाऊंगा। I shall go to Sunday and take the gifts along. विश्वास करिए, आपके बस का किराए का इंतजाम भी और प्रभु के घर में दान देने का इंतजाम भी वो खुद करके देता आपको। Believe what you sow in the house of God and what your fare is required shall be met with. आप कुछ नहीं है, You are nothing. सब कुछ वो ही है। He is all. लेकिन आपने उसके स्वाद को चखना है। You got to taste him. बाइबल में लिखा है, यहोवा को चखो, वो भला परमेश्वर है। Taste the Lord and see how good he is. आपने उसका टेस्ट करना है। You got to taste the Lord. हम जो हनी होता है, शहद, उसका टेस्ट करते हैं। We taste the sweetness of the honey. लेकिन आप परमेश्वर का टेस्ट नहीं करते। But you don't taste God. लेकिन मैं आज आपको ये बताना चाहता हूं, अगर आप परमेश्वर का टेस्ट करें, But I want to tell you, if you taste God, आपकी तस्वीर बदल जाएगी यीशु मसीह के नाम से। your image shall be changed in the name of Jesus Christ. मेरे बहुत नजदीक एक परिवार रहता है And a neighbor of mine, a family lives. और वो बहुत छोटे छोटे काम करते हैं वो लोग। They do menial works. जब उन्होंने प्रभु के वचन को माना, When they obeyed the word of the Lord, परमेश्वर ने उन लोगों के लिए आशीष के दरवाजे खोल दिए। and God opened the ways of blessings for them. जो लोग 1000 रुपए के लिए सोचते थे हम दें या ना दें, When a person thinking about $1,000, should I give or not? पिछले ही हफ्ते उन्होंने 1,30,000 रुपया चर्च में दिया है। Last week, this family gave $130,000 to the church. जब 1000 देने के लिए सोचते थे, And one time thinking about giving 1,000 rupees. शैतान आपके दिमाग में एक पर्दा डालता है। And the Satan puts in a veil over your brain. जब चर्च में देने का, बीजने का, बोने का टाइम आता है, वो आपको किसी और तरफ लेके जाता है। When the sowing time comes, he takes you in a different direction. क्योंकि आप बोए ना, आप सीड ना दें, ऑफरिंग ना दें प्रभु के घर में। So that you should not give seed offering into the house of God. वो जानता है अगर आपने ये करना शुरू कर दिया जो प्रभु का हुक्म है, And he knows if you start to do, this is the word of the Lord. आप बादशाह बन जाएंगे इस पृथ्वी पे। You shall be a king on this earth. आप अमीर हो जाएंगे। You shall be rich. वो नहीं चाहता आप अमीर हो। He doesn't want you to be rich. ये बात आपको बड़े ध्यान से सुनना है कि आप कहां खड़े हैं और वचन क्या कहता है। And you got to be attentive to understand where you stand and what does the word say to you. आप लूका का 9 उसका 26 में देखो क्या लिखा है। Luke 9:26. जो कोई मेथों ਅਤੇ मेरे बचना तो शर्माएगा, मनुख दा पुत्र भी उस तो शर्माएगा, जिस वेले
ਆਪਣੇ ਅਤੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਅਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਦੂਤਾਂ ਦੇ ਤੇਜ ਨਾਲ ਆਵੇਗਾ। ਬੋਲੋ ਆਮੀਨ। वचन की है। What is the word? जितना भी मैं प्रचारण करूंगा मैं वो आपको बाइबल से दिखाऊंगा क्या क्या लिखा है। And whatsoever I preach, I shall just show you from the Bible what it's written. बहुत प्रचारण मैंने नहीं किया जो बाइबल में लिखा है, Many preachings I have not preached that is not written in the Bible. क्योंकि कभी कभी हम ऐसा सोचते हैं कि दूसरे लोग हमारे विषय में क्या सोचेंगे। Sometimes we think, what shall people say regarding us? ਜਾਂ ਤੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਨਾ ਲਓ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜੱਗ ਨੂੰ ਮਨਾ ਲਓ। Or you can make God happy or men happy. आपको वो वचन का प्रचारण करना है जो बाइबल में लिखा है। What's the word of God is written in the Bible, you got to preach it. अगर मैं उसको प्रचारण ना करूं तो हजारों लोग गरीबी में मर सकता है। If I do not preach the sermon, then many thousands shall die in poverty. इसलिए मुझे आज ये प्रचारण करना है कि सब कुछ जो इस पृथ्वी पे है वो मनुष्य के लिए बनाया गया है। For I want to preach today, whatsoever has been on this earth is belonging to the man. आपको जिंदा परमेश्वर के सामने झुकने, प्रार्थना करने, व्रत रखने और अनेक प्रकार के जो बाइबल में समाधान दिए गए उनका फायदा क्या है अगर आप गरीबी में मर रहा है। And what is the use of doing all those things that are written in the Bible and you are dying of poverty? अगर आप आराधना करते हैं और गरीबी में है उसका फायदा क्या है। If you are worshiping and you are still in poverty, what is the use? बाइबल कहती है गरीबी परमेश्वर की ओर से नहीं है। For poverty is not from God. बाइबल कहती है बीमारी परमेश्वर की ओर से नहीं है। The Bible says sickness doesn't come from God. और बीमारी जो है वो पाप की ओर से है। The sickness is और from जो the गरीबी है वो शैतान की ओर से है। poverty is from Satan. परमेश्वर ने जब पहले मनुष्य को बनाया, God when created first man, परमेश्वर ने उसे आशीष दी है। He blessed him. मैं तुझे ब्लेस करता I हूँ, bless you. पूरी पृथ्वी पे तेरा राज्य स्थापित हो जाए। Your kingdom shall be in all the और earth. वहां लिखा है मैं तुझे राजा बनाता हूँ। He said, I make you king. और आज हम राजा से क्या बनेंगे। What have we become from king? कपड़े फटे हैं, Oh, clothes torn. जुतियां टूटी हैं, Oh, just broken घर के shoes. दरवाजे टूटे हैं, Oh, the house doors are broken. घर में अच्छा नल नहीं है, No tap that is फ्रिज good. नहीं है, No fridge. सोने के लिए बेड नहीं है, No bed to lie. और परमेश्वर ने आपको आशीष दी है। God has blessed you. ये कैसे हो सकता है। How is it possible even? जहां तो परमेश्वर ने तुझे आशीष नहीं दी, Either if God has not blessed you, जहां तुमने उस आशीष को लिया नहीं, or you have not received that blessing. आपने परमेश्वर के वचन को माना नहीं। You did not obey the word of the Lord. अगर आज से आप परमेश्वर के वचन को मानेंगे, If from today you shall obey His मैं कहना word, चाहता हूं आप बादशाह बन जाएंगे I want यीशु to के, say you shall be the king in the, यहोवा Lord के Jesus. जिंदा नाम से। In the living name of the Lord God. बाइबल कहती है आपको कोई घटी नहीं होगी। Oh, you shall not lack anything. कितने जानते हैं ऐसा बाइबल में लिखा है। How many of you know it's written in the Bible? बोलो मुझे कोई घटी नहीं होगी। विश्वास के साथ बोलिए मुझे कोई घटी नहीं होगी। कभी कभी मैं कुछ शब्द ज्यादा कठोरता से यहां बोल देता हूं। Sometimes I speak the words with firmity. अगर वो अपने आप के लिए हो जाए And if it becomes for you, तो आप निराश मत होना मेरे से, oh, do not be sorry for me. क्योंकि यहां मैं खड़ा हूं, यहां एक बॉस है पवित्र आत्मा, उसके अधीनताई में हम चलते हैं। Where I stand, the Holy Spirit is the master and we subdue ourselves to Him. अभी मैंने एक वचन पढ़ा था कि जब आप परमेश्वर के वचनों से शर्माएंगे तो प्रभु भी आपसे शर्माएगा। That it was said that if you are ashamed of the word of the Lord Himself shall be ashamed of you. मानिए आपके पास एक बहुत बड़ी गाड़ी है You got a big car. और सबसे बड़ी कंपनी की ऐनक आपने लगा रखी है, And you the costliest goggles put on. आपने बड़े शूज डाल रखे हैं, And good branded shoes you put on. आपके बहुत महंगे वस्त्र पहने आपने, Costly clothes you worn. और आप जा रहे हैं किसी गांव में। And you're going into a village. क्या आप उन भिखारियों के और गरीबों के
साथ बैठ के खाना खाएंगे? Would you sit with those beggars and those poor ones and eat food with them? जो लोग पाप में हैं, नशे में हैं, गंदगी में हैं, आप उनके साथ बैठेंगे? Would you sit with those who are addicted or who are just a distorted one? जैसा आपका रुतबा है, जैसा आपने पहन रखा है, आपको वैसा ही बैठने के लिए सामने लोग चाहिए जिनके बीच में आप बैठना चाहता है। And you would like only to sit with those who have the same kind of stature. अगर बाइबल में लिखा है कि मैं भी आपसे शर्माऊंगा, And if it is written in the Bible, I shall be ashamed of you. इसका मतलब है जो लोग पाप में हैं, शैतान के बंधन में हैं, मुसीबत में हैं, कर्जे के नीचे हैं, फटे जूते हैं, फटे कपड़े हैं, उनके साथ प्रभु की कोई दोस्ती नहीं होगी। That means those who are under Satan and are living under poverty and wearing bad clothes and torn shoes, they do not have fellowship with the Lord. इसको आप दो एंगल से देख सकता है। With two angles you can view it. पहला एंगल है आत्मिकता में आप कैसा है। How you are spiritually. अगर आप आत्मिकता में पवित्र हैं, If you are spiritually holy. तो संसारिक तौर पे आप गरीब नहीं रह सकता। As in the natural you won't be poor. नेक्स्ट लेवल आपका है। मैं कहना चाहता हूं रेडी हो जाओ आप नेक्स्ट लेवल को अचीव करने के लिए। Next level belongs to you. Prepare to go into the next level. लेकिन धन आएगा कहां से? Where shall the riches come from? ये आपका मैटर नहीं है। That is not for your concern. आपका मैटर इतना ही है, And what concerns you only, आपने विश्वास करना है। you got to believe. ये वचन मैं इसलिए पढ़ रहा हूं, अगर तुम मुझसे शर्माओगे तो मैं भी तुझसे शर्माऊंगा। This is what the word I'm reading. If you shall be ashamed of me, I shall be too. कुछ लोग हैं Some people, जो सिर्फ प्रभु से ग्रहण करना चाहते हैं, those who just want to receive from the लेकिन Lord. प्रभु को कुछ देना नहीं चाहते। They do not want to give anything to the Lord. ऐसे ही एक बार यीशु मसीह प्रचार कर रहे थे, Jesus Christ was preaching something. बहुत बड़ी भीड़ उसके पीछे थी। A large people following him. अगर उसको मैं कैलकुलेशन करूं तो कम से कम 20,000 के आसपास वो लोग होंगे। And if I calculate 20,000 heads, it will come to. और यीशु मसीह ने कहा मैं चाहता हूं इनको खाने के लिए कुछ दो। Jesus said, I want that they should be fed. लेकिन बाइबल बताती है Bible says वहां इतने लोगों के लिए खाना नहीं था। there was not enough food for such many people. यीशु मसीह ने अपने शिष्यों को कहा, Jesus told unto his disciples, लोगों को बोलो लाइनों पे बैठ जाओ। tell these multitude to sit in rows. अभी And now, यहाँ हुआ क्या है? what's happening? यीशु के चेले परेशान हो रहे हैं। The disciples of Jesus are not distressed. लाइनों पे बैठ के क्या खाएंगे? What shall we eat in rows? क्या खाएंगे? What क्या खाएंगे? What shall we eat? हमारे पास तो कुछ नहीं है। Oh, we have got nothing. लाइनों पे बैठ के क्या करेंगे? What shall we do if we will sit in line? अगर आप मेरी बात पे विश्वास करें And if you believe what I'm saying, और अमीरी वाली लाइनों में आप खड़े हो जाएं, stand in the queue of the rich and आप wise. अमीरी को देखेंगे यीशु मसीह के नाम You से। shall see richness. वहां लिखा है खाना नहीं था, No food, it's written. लेकिन यीशु ने बोला लाइन बना कर क्या कर? Jesus said, make the queues. ये and लाइनें बनाने का मतलब है विश्वास में आ जाओ, बैठ जाओ, आपको अच्छा भोजन मिलेगा। make coming in queues means have faith, you will get good food to eat. जो नॉन वेज खाना चाहता है नॉन वेज, और जो वेज खाना चाहता है उसको वेज मिलेगा। The one who is non-veg shall eat non-veg, and one who is vegetarian shall have. दोनों मील वहां आए, Both meals came. वेज भी आया और नॉन वेज भी आया। बोले यीशु मसीह का नाम। खाना नॉन वेज तो रौला घट पाया। You want to eat non-veg, and then you got to. बोल यीशु मसीह का नाम। हालेलुया। Hallelujah. आपको समझ आ रहा मैं क्या बोल रहा हूँ आज? Can you understand what I'm saying? खाना नहीं है नगर यीशु ने क्या बोला? क्या क्या करो? No food, but Jesus said, कैसे बैठ जाओ? how? और लोग बैठ गए। People said, बैठ गए। yes. अभी चेला लोग परेशान हैं। Disciples are distressed. किधर है? Whoa, where? क्या करने वाले हैं गुरुजी? What is the teacher about? खाना तो नहीं है, No food. नमक भी नहीं, टमाटर भी नहीं, लहसुन भी नहीं, अदरक भी नहीं। No salt, tomatoes, onions, garlic.
आग भी नहीं है, no fire, कोई डालडा देसी घ्यो भी नहीं है, no dalda, no pure ghee, कोई पतीला चमचा कड़छी कुछ नहीं है। no vessels. करने क्या वाले हैं, What is each and होने about, क्या वाला है। what is about to happen? जब परमेश्वर आशीष देने लगे तो उसको किसी भी वस्तु की जरूरत नहीं When है। God is about to bless, He doesn't need things. कोई मायना नहीं आपके पास बिजनेस है कि नहीं है, Doesn't matter you have a business or not. आप इंटेलिजेंट हैं कि नहीं है, You are intelligent or not. लेकिन परमेश्वर को एक ही वचन है जो आपके जीवन में जीवित होना चाहिए। Only one word that should be alive in you. खाना देने से पहले प्रभु ने पूछा आपके पास क्या है। Before serving food, Jesus asked, "What you have?" उन्होंने बोला हमारे पास तो कुछ नहीं है, And they said, "We have got nothing." लेकिन But हमारे बीच में एक लड़का है, there is a boy in the midst of us. उसके पास 5 Panch roti, मच्छियां, 2, 2 खाने वाले thousands. 20,000, Oh, 20,000 people to eat. 5 5 रोटियां loaves of bread, और 2 2 small fish. फिश, छोटी होगी बड़ी नहीं, Small fish. और खाने वाले 20,000. बोलो ना, अब दिमाग सुन हो रहा ना आपका। Is your brain going down? अगर आपकी समझ में बातें आ गई तो वो परमेश्वर ही क्या है जिसको आप समझ गए, If you understand, then who is He? Who is God? वही परमेश्वर है जिसको आप समझ ना पाए। He is the God whom you cannot understand. सोचते रहो Keep thinking. यार, 5 रोटी और 2 मछली और 20,000 के आसपास लोग खाने वाले, ये कैसे संभव हो सकता है। 5 loaves of bread to small fish, 20,000 people. How यार मेरा जूता टूटा है, कपड़ा फटा है, घर में खिड़की नहीं है और पादरी बोल रहा है आप अमीर होने वाले हैं। Oh no, my torn clothes, shoes torn, nothing in home. कोई बिजनेस नहीं है मेरे पास, छोटा सा बिजनेस है, मर मर के करता हूँ, सड़ के करता हूँ, और पादरी ने आज प्रचार किया तू अमीर बनने वाला है। Now preacher preaches you're about to be rich. ये कैसे हो सकता है? How is it possible? अगर आपने ये सोचना है तो आप पूरी जिंदगी सड़ के इसी कर्जे में आप खत्म हो जाओगे। If you want to think likewise, you will finish. इसे छोड़ो और विश्वास करो ये आपके लिए हो सकता है, Leave it aside and say, और विश्वास करो आपके लिए हो रहा and है। it's happening for you. आपके हालात बदल रहे हैं, Situations are आपके changing. हालात बदल रहे Your हैं। situations are आप changing. गरीब नहीं You are हैं, not poor. आप राजाओं के राजा के पुत्र और पुत्री You हैं। are the sons and daughters of the King of सब Kings. कुछ पॉसिबल है यीशु मसीह के नाम से। All things are possible in the name of Jesus. यहोवा, Lord God, पूरी ऊंची आवाज में यहोवा, मैं विश्वास करता हूँ हेवनली फादर, ये पूरा हो रहा है, is coming to pass. सब कुछ उखड़ रहा है, All things are getting approved. नया बन रहा है Coming new. यीशु मसीह के नाम In the से। name of Jesus Christ. आमीन। Amen. एक उधर 2-3 लोग बैठा, ओए 3 people sitting over there. Oh, cramps and वो क्या हुआ क्या हुआ? what's the problem? यार भूख से तो मेरी जान निकल रही है। I'm dying of hunger. इधर रौला तो मच रहा है, खाना बन रहा है, Oh, they are just shouting, food is getting prepared. कोई खाना गुना नहीं बन रहा है इधर। Oh, no food. कहाँ है देख तो। Come on, let's see. उसने बोला ओह मेरा, और दूसरा आदमी And the next one. Oh, क्या हुआ? what happened? मैं भी मर रहा हूँ। I'm dying. गुरुजी ने बोला लाइनों पे बैठ जाओ। Teacher said, sit in rows. बेविश्वासी लोग बोलेंगे क्या हम लाइनों में बैठ के घास खाएंगे? And unbelievers are saying, can we eat grass? क्या खाएंगे हम? What shall we eat? दिखता तो कुछ नहीं है। We are nothing is unseen. अभी मैंने सुना है And just now I heard. कि मांगा गया जो है आपके पास लेके आओ। Oh, what he's asking, whatsoever you have with गुरुजी you. तो आप मांग रहे हैं। The teacher is himself asking. ध्यान से सुनिए इसका लॉजिक क्या है, And with care, listen what the logic is. आपके अमीर होने का फार्मूला क्या है। What is the formula for you to get rich? प्रभु ने बोला जो आपके पास है लेके आओ। The Lord said, whatsoever with you, bring it. पहले जो आपके पास है वो प्रभु को ला के देना है। Firstly, what you have,
bring it to the Lord. जो भी आपके पास है, Whatsoever you have, भले ही अपने साइकिल बेच दो, and sell your cycle, सराहना बेच दो, Sell your कंबल pillow. बेच दो, Sell your coat. चारपाई बेच दो, sell your bed. लेकिन प्रभु को देना पड़ेगा। You got to give it to the Lord. लड़के को पूछा, ये मुझे मछली आपकी चाहिए। And boy was asked, oh, I want your fish. मैं नहीं दूंगा। I will not give. उसने बोला, गुरुजी ये मांग रहे हैं, बड़ा करके देंगे, Oh, the Lord shall pray and then he shall bring बढ़ा it के back. देंगे इसको। He shall multiply. तो किसी तरीके से उन्होंने उस लड़के को मना लिया, उसने 5 रोटी और 2 मछली दे दिया। And by any means they made the boy right and he gave 5 loaves and 2 fish. ध्यान से सुनिए, ये मजाक नहीं है। This is not a mockery. Careful be you. पहले वो 2 मछली और 5 रोटी उस लड़के के हाथ में थी, And earlier that 5 loaves and 2 fish was in the hands of that boy. वो लोगों के हाथ में थी। 5 रोटी 2 मछली, 2 fish, 5 loaves was in the hands of people. तब उसके ऊपर आशीष नहीं आई। No blessing has come now. जब तक आपके हाथ में है आपकी चीजें, आपका धन, तब तक उसके ऊपर आशीष नहीं आती। Till the time your riches are in your hands, no blessing can come upon them. जैसे ही कन्वर्ट हुआ, As soon as it was जैसे converted, ही उन्होंने प्रभु के हाथ में दी, as they gave into the hands of the Lord, वो मछली और रोटी अपने आप बढ़ने लगी, those fish and बढ़ने bread लगी, multiplied, बढ़ने लगी, बढ़ने लगी। multiplication. 20,000 लोगों ने खाया। 20,000 people ate. हालेलुया। Hallelujah. आज दिक्कत ये है, And today the problem is, आपने सब कुछ पकड़ के रखा है। you have caught hold of everything. चर्च में दान देने की बारी आई तो गूंगे बहरे बन जाते हैं You हम, become dim and deaf when the time comes to give alms. ना कभी ऑफरिंग देते हैं, Never given an ना offering, ढंग से कभी बीज बीजते हैं, neither sow any seed in time. और प्रार्थना करते हैं, बड़ी बड़ी प्रभु जहाज भी दे दे। And praying great prayers, give me the plane. वो कहता है तुझे तो साइकिल नहीं मिलना चाहिए, तू जहाज मांग रहा है। He says you're not worthy for a cycle. मैं आपको कहना चाहता हूँ And I आज, want to tell you अगर today, आपको जहाज चाहिए, if you want a plane, अगर आपको आशीष if चाहिए, you want a blessing, तो जैसे प्रभु कहते हैं ऐसे मांगना स्टार्ट करें, and start as the Lord says to आप us, आशीष को पाएंगे you shall be finding the blessing. यीशु मसीह के नाम से। In the name of Jesus Christ. आप लूका 21 में जाइए, Go into Luke 21. 1:4 से देखेंगे क्या लिखा है। From verse number 1 till 4, let's see what it says. आप पढ़िए। फिर उसने आंख उठाकर हाँ, धनवानों को अपना अपना दान भंडार में डालते देखा. पहली आंख में यीशु मसीह ने किसको देखा? Rich ones, हेलो, धनवानों को, the ones who are rich, अमीर लोगों को the rich people. प्रभु ने पहली आंख से देखा। धनवान अपना दान तिजोरी में ऑफरिंग डाल रहे थे। First eyesight, God, the Lord saw the rich ones putting इसका in मतलब प्रभु अमीर लोगों का कभी दान देखते हैं कि वो कितना अमीर आदमी डालता है दान। The Lord sees how much the rich man puts in the offering. क्या वो ठीक तराजू से तोल के डालता है? Is he giving with the right measure? आपके हाथ में तराजू दी गई है, You have been given a balance in your hand. तकड़ी। Balance. क्या आप ठीक तोल करते हैं? Are you doing the right balance? क्या आप प्रभु को देते हैं? Do you give to the Lord what belongs to क्या him? आप प्रभु का भी Or you just gulp in what belongs आप to गबन कर रहे हैं? him? You are doing duping हम him. बाइबल में देखेंगे परमेश्वर का पवित्र आत्मा नबियों के द्वारा इसके विषय में क्या कहता है। We will look from the Bible, the Holy Spirit saying to us. पहली आंख में प्रभु ने धनवान लोगों को देखा, वो दान डाल रहे थे। दूसरी आंख में देखो क्या देखा। Let us see what the next eye sees. और उसने एक कंगाल विधवा को भी. हाँ, उस- देखो कौन दान डाल रही है? Who is offering? कंगाल। Oh, the poor one. मतलब कुछ नहीं है उसके पास, She has not कर्जे के नीचे है, under debt, गरीब है, very poor. कुबड़ी है, She's bent on. और कोई वो अमीर औरत नहीं है, एक कंगाल है। Widow. वो भी क्या कर रही है? What is और she? ऊपर से क्या है? Widow. वो विधवा है, Vidwa, yes. कंगाल है और विधवा है, तो भी दान डाल रही है। A widow
poor putting in the offering. हम क्या सोचता है? What do we think? हम तो अभी कर्जे के नीचे हैं, We are on the debt. हम तो योग्य नहीं है दान डालने के, We are not worthy to put in हम offering. तो देने के योग्य नहीं We है। are not able to give. लेकिन But जो विधवा वो भी सोचती है मैं तो विधवा हूँ, this widow might be thinking, I'm a widow. मुझे तो ओपन डोर चर्च से राशन मिलना चाहिए, 20,000 का चेक एवरी महीने मिलना चाहिए, 20,000 of check and every ration I got should get from the church. क्योंकि हम तो विधवा है। We are widows. और कंगाल सोचता है 1 लाख रुपया हर संडे पादरी को देना चाहिए, And the one who is poor says, wow, 1 lakh क्योंकि हम तो कंगाल है। We are poor. आपकी सोच में और वचन की सोच में अंतर कितना है? See the difference between your thoughts and the thoughts of the world. आप कैसे सोचता है How और you- प्रभु का वचन कैसे बोलता है? How you think and what the word of God speaks. अभी कौन दान डाल रहा है? Who is putting in the offering? कंगाल। बोलो कौन? कंगाल। देखो बोलते नहीं आप। विधवा Widow. और अमीर, तीनों स्टेटमेंट्स अलग अलग है। 3 statements in queue. वो दान डाल रहे हैं। They are putting in their offerings. हम तो बस वाले का किराया नहीं देते। We do not give fare to the bus. आज मैं कहना चाहता हूं, अगर आप बस का किराया नहीं देते, आप देना शुरू करो, आपके जीवन में प्रभु की ब्लेसिंग खुलनी शुरू हो जाएगी। Those who do not give the fare bus, start to give you blessing of the Lord. shall आपके open. घर में ब्लेसिंग आना स्टार्ट हो Your जाएगी। houses shall be blessed. फॉलो द रूल, Follow the rules. जो नियम है उसको फॉलो स्टार्ट करो करना, Follow up the principles. आप बढ़ते ही चले जाएंगे। You shall keep growing. 1-2 बार तकलीफ हो सकती है, Twice or thrice you shall be in लेकिन trouble. आपकी जीत पक्की है। खुदावन के वचन झूठ नहीं बोलता, The word of God never lies. Your victory is firm. प्रभु का वचन सच्चा है। It is true, the word of God. कभी कभी आप निराश हो जाता है। Sometimes you get saddened. निराशा का आत्मा प्रभु का आत्मा नहीं है। The spirit, the anxiousness is not from God. जब आप निराशा के आत्मा में हो तो सोच लेना ये संपर्क किसी और ही देश में हो गया है। When you are in anxiety or worried, you are connected to something else. ये जो मैसेज आ रहे हैं वो शत्रु की ओर से आ रहे The हैं। message you are receiving comes from your enemies. धनवान लोगों को भी दान डालते देखा और कंगाल और विधवा को भी दान डालते देखा। It was seen the rich is giving that लेकिन offering. यीशु ने वहां खड़े होकर ये नहीं कहा Jesus did not stand and say कंगाल और विधवा को दान डालना मना है। that the rich and the poor, they are not allowed to put in. ऐसा नहीं बोला प्रभु ने, खाली अमीर लोग ही दान लेके आए। The Lord did not say only the rich ones get the money. लेकिन प्रभु ने वहां खड़े होकर क्या बोला? What did the Lord say and stand? ये जो कंगाल और विधवा ने दान डाला है, The offering the rich and the poor put in. मैं उसकी प्रेस करता हूं, ये सबसे बढ़िया डाला है। And this is the best and I praise them for it. आप भी अगर प्रभु के साथ मिल जाएं, If you come in fellowship in the प्रभु के वचन के साथ मिल जाएं, come in intimacy with the word of God, आप धनी बन सकता है यीशु के नाम से। you can be rich in the name of Jesus. यहोवा परमेश्वर आकाश खोलने के लिए तैयार है The आपके Lord लिए। God is ready to open the heavens. अगर आप अमीर होना चाहते हैं, अपने हाथ उठाएं और प्रभु का धन्यवाद If करें। you want to be rich, then raise up your hands and thank the Lord. थैंक यू जीसस। Oh, thank you. Jesus. शर्माइए मत आप। Do not feel shy. अगर आप ज्यादा आशीष लेना चाहते हैं तो दोनों हाथ सीधे खड़े करके प्रार्थना करिए आप। For blessing, you want to receive both your hands straightened up and thank Him. प्रभु ये आत्मिक खजानों की बारिश के लिए मैं आपका स्वागत करता हूं। Lord, I welcome for this rain of thy treasures and प्रभु riches. ये पवित्र अनॉइंटिंग की बारिश और इस धन की बारिश मेरे ऊपर आने दे आज। Oh Lord, let this rain that is holy and there is no blessings, let it come upon me. मैं आपके वचन को ग्रहण कर रहा हूं। I receive your word. मैं आपके वचन को ग्रहण कर रहा हूं। I receive your word. यीशु मसीह के नाम से In the name of Jesus Christ. आमीन। अगर आपके पास थोड़ा भी है, If you have less even, उसमें भी प्रभु को देना, उसके घर में देना, ये बाइबल का नियम है। this is the principle of the Bible. You got to give if you have got small offering. अगर आप नहीं देंगे, If you do not give, आप नहीं बढ़ेंगे। you won't grow. आपके कर्ज
अलौकिक शक्ति के साथ खत्म हो जाएंगे। Your curses shall finish off with the divine power. जब मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा, And when I shall pray for you, वो प्रार्थना आपके लिए रास्ते खोल देगी यीशु मसीह के नाम The से। prayer shall open the ways for you. you in the name of Jesus Christ. मेरी प्रार्थना के द्वारा आपके रास्ते क्यों खुलेंगे? Why from my prayer your ways shall be open? क्योंकि आपने परमेश्वर के वचन को पूरा किया है। For you have fulfilled the word of God. कोई भी व्यक्ति चाहे 20 बार प्रार्थना कराए, Any person gets prayed for 20 times. अगर वो वचन को फॉलो नहीं करता, If he doesn't do the word, प्रार्थना उसके लिए कोई आंसर नहीं लेके आएगी। prayer shall not bring answer. मैं आज आपको दावे से कहना चाहता हूँ, With conformity I want to say, जैसे अलौकिक शक्ति के द्वारा 20,000 लोगों ने खाया, as the divine, by the power of that, 20,000 were fed. आज भी आप अलौकिक शक्ति के द्वारा अपने तमाम कर्जों से मुक्त होने के लिए तैयार हो जाओ। Even today, by the divine power, you be ready to be rid of your curses. आपके ऊपर कोई भी बोझ नहीं रहेगा आज के बाद। No burden shall remain upon you. आपके घर परिवार में आशीष के लिए स्वर्गदूत आना शुरू हो चुके हैं। For your blessing in your homes, the angel is starting. To descend over there. आपके परिवारों और बच्चों में गरीबी नहीं आएगी। In your family, in your children, the poverty shall not come now. जितने कर्ज हैं आपकी लाइफ में, आज यीशु के नाम से उन सारे कर्ज को इस पवित्र वेदी से तोड़ दिया जाता है। And from this holy blast, the curses Curses are hereby broken. आप अमीरों की तरह सोचना शुरू करें आज ही। Start to think like the rich ones. आज ही सोचना शुरू करें आप इस धरती पे क्या करने वाले हैं। Start to think what you're about to do in this earth. आप बार बार इस पृथ्वी पे नहीं आएंगे। You won't come time again into this earth. अभी इसी समय 5 मिनट भी वेस्ट किए हुए आप अपनी योजना बनाओ, प्रार्थना करो, प्रभु के घर में उसके वचन को पूरा करो, आप अपनी परिस्थितियों को बदलते हुए देखेंगे। Think what you're about to do. Just put in your mind what you're gonna do. क्या आप चाहते हैं आपकी परिस्थितियां बदल जाए? Do you want your situations to change? चेंज हो सकती है, Yes, it can. चेंज हो सकती है। Yes. कितने विश्वास करते हैं चेंज हो सकती है? विश्वास करते हैं आप? अगर आप विश्वास करते हैं चेंज होना शुरू हो चुकी है। If you believe changes are started. मैंने बोला चेंज होना शुरू हो चुकी है। The changes started to begin. उन्हें बोला गुरुजी लोग तो बैठ गए। Teacher, people have sat Up. down. Now. प्रभु ने कहा जो आपके पास है वो मेरे हाथों में दे दो। The Lord said, what's in your hand, give it unto me. ये दो तस्वीरें बड़ी ध्यानपूर्वक देखने वाली हैं। These two pictures walking side by side need to be attentive to see it. वो मेरे हाथ में Oh, things in my hand और दूसरा प्रभु के हाथ में। and the next in Lord's hand. आपको लगता है जो मेरे हाथ में है वो सबसे ज्यादा सुरक्षा में है, And you think what's in my hand is mostly defended. लेकिन वो अगर आप प्रभु के घर में अपना दशमांश टाइथ ऑफरिंग सीड नहीं देते, And if you do not tithe, offering and give gifts into the house of God, फिर आपका पैसा कहाँ जाता है? where does your money go then? वो वकीलों के पास जाता है, Go to the advocates, डॉक्टर लोगों के पास जाता है, doctors, they get it, नशे में जाता है, goes in the drugs, कर्जे में जाता है, goes in the debt, अनजाने में चीजें खराब होती हैं and in a strange और place. शैतान लूटता है आपको, And now the Satan is मारता है आपको, kicking you, वो रोने भी नहीं देता आपको, doesn't let you cry. आप बाहर निकल के हंसता है। You come out and laugh. आज का दिन बहुत अच्छा है, This is the day very good. अंदर रो के बाहर आ रहा है, Crying and coming out. लेकिन प्रभु आपकी डुप्लीकेसी को खत्म कर रहा है आज। The Lord is finishing off your duplicates. परमेश्वर आपको असली वाला, जिंदगी वाला प्यार, आशीष और सदा की अनॉइंटिंग देने वाला है। The Lord is about to give you the truth and the reality and forever the blessing that He has to you. अगर तुसी इन्हां वचनां नूं अपने जीवन ते लागू करोगे And if you apply these words in your life, और तुसी छुटकारा पाओगे यीशु मसीह के You नाम में। shall be delivered in the name of the Lord. एक बार जोर से पुकारो और बोलो हेवनली यहोवा, हेवनली पिता, हम आज विश्वास करते हैं मेरे लिए स्वर्ग की तिजोरी खोल दी गई है, The heavenly doors are open. तिजोरियां खोल दी गई हैं, It has been opened. बंद रास्ते खोल चुके हैं Closed doors are यीशु open. मसीह के नाम In से। the name of Jesus Christ.
आमीन। सच्ची बात यह है, And the reality is, बाइबल कहती है the Bible says, खाली हाथ आने वाले लोगों के लिए कोई आशीष नहीं होती। those who come empty-handed, there is no blessing for them. बाइबल में जितने भी लोगों ने आशीष ली है, All the blessed people in the Bible, कोई भी खाली हाथ नहीं दिखा। no one was seen empty-handed. सब कुछ ना कुछ लेके आए Everybody brought in something, और प्रभु की आशीष को उन्होंने लिया। and then they received the blessing of the Lord. और मैं आज ये विश्वास करता हूँ, Today I believe that आज के बाद आप खाली हाथ नहीं आएंगे। from today you won't come empty-handed. और आज जो बीज ऑफरिंग सीड आप प्रभु के राज्य के लिए देने वाले हैं, And the seed offering that you are about to give into the house of God, डेफिनेटली वो 100 गुना मल्टीप्लाई होकर आपको वापस दिया जाएगा, It shall be hundredfold multiplied. God, and be given unto thee. यीशु मसीह के नाम से। In the name of Jesus the Christ. आमीन। Amen. ये इतना तीखा होना चाहिए कि पतंग दूसरे की कटे। You should be so sharp, the kite of other ones shall pick off. आमीन। यस, हालेलुया। Hallelujah. मैं एक धनी व्यक्ति की बात आपको बताना चाहता हूं। A rich man's story I want to tell you. एक बहुत ही बड़ा बिजनेसमैन विश्वासी था, A believer who was a great businessman. और वो भी आप जैसा ही सोचता था। And he has the same mind as you are. कभी दान दिया, कभी दान नहीं दिया, Giving sometimes offering and sometimes not. कभी बड़ा दान दिया, Sometimes great offering. कभी कहीं दान दिया, कभी कहीं दान दिया, Sometimes somewhere else giving offering somewhere else then. कभी कभी वो लोगों के बीच में जाता था। He used to go in the midst of the people. 10 लोग आगे हाथ जोड़ के बोलते थे, 10 people came with folded hands. saying, श्रीमान जी यहाँ ये बनने वाला है, वो बनने वाला है, आप मदद करें। Sir, this is about to be built over here and over there. तो वो बिजनेसमैन वहाँ लोगों की फरियाद सुन के पैसे देता था। He used to understand the petition. He used to give money to them. लेकिन जब वो अपने चर्च में आता था, When he used to come into his church, वो कैलकुलेशन कर लेता था, मैंने तो इतना दान दे दिया। and he used to calculate, I have given this much of offering. ऐसे ही धीरे धीरे उसका बिजनेस जो है वो डाउन होने लगा। As per the time that business started to draw now, फिर वो भागा दौड़ा, क्या करूं, running here, where, what should I do? उदास रहने लगा, Started to be sad. परिवार में गड़बड़ होने लगी, There was a temple up in the family. परिस्थितियां बदलने लगी, Situation started to go. उसके कनेक्शन लूज होने लगे। He started to lose the connections. जो लोग उसके साथ पहले बड़ी निम्रता के साथ पेश आते थे, अब उसका बिहेव बदलना शुरू हुआ। The behavior of the people used to come and request it changed. ऐसे ही एक दिन चर्च में, उसके अपने चर्च में उसका पादरी प्रचार कर रहा था। And the pastor of his church was preaching one day. और उस समय वो कुछ कर्जे के नीचे भी आ रहा था। And that time he was under the debt. जब प्रचारक ने प्रचार किया कि आपको लोगों की सहायता के लिए अलग जेब है, लेकिन जो प्रभु का है वो प्रभु के घर में और उसी चर्च में देना, यहां से आप शिक्षा प्राप्त करते हैं। That you receive the teachings from, and you got to give your tithes to the house of God. उसने पादरी को कुछ नहीं बताया, Didn't tell to the pastor. वो अपने घर गया, He went home, उसने एक दिन का फास्टिंग किया, fasted for a day, माफी मांगी, repented. प्रभु मैंने जो किया वो अपने दिमाग की कैलकुलेशन से किया है, Lord, what I did is the calculated of my mind. अभी मैं माफी चाहता हूँ, And I need repentance आगे now. से ऐसा कुछ नहीं होगा। From next time it won't happen मैं again. प्रॉमिस देता हूँ प्रभु तुझे, Lord, I make a covenant with you. मैं जैसा भी है मैं अपने चर्च का अपने चर्च में ही रखूंगा। Whatsoever I am, I shall keep what belongs to my church. क्या हुआ, What happened then? 4 महीने के बाद वही बिजनेसमैन को And after 4 months, that same businessman doing business, प्रभु ने फिर उठाना शुरू किया। the Lord started to make him rise. फिर वो ऊंचाइयों पे आया, He started to come on the heights. फिर वो अपने पादरी के पास आया, Came to his pastor. बोला पादरी साहब He said, Pastor, मैं ऐसा करता था, I used to do like ऐसा this, भी मैंने किया, and this is how I did. मैंने कभी भी दशमांश
सही दशमांश कभी नहीं दिया। I did not pay in the right kind of tithing. अभी मेरे हालात बदलने स्टार्ट हो चुके हैं। My situations have started to आप मेरे change. लिए प्रेयर करो, Pray for me, मैं आगे बढ़ूं। that I shall grow. पादरी ने उसके लिए प्रार्थना की। The pastor prayed for him. आप जानते हैं क्या हुआ? Do you know what happened? जिन लोगों को वो जानता नहीं था, The people he didn't knew, वो लोगों ने उनके साथ संपर्क किया those people made a contact with him. और बोला मुझे आपकी मदद चाहिए। And they said, we need your आप help. जितना भी कीमत मांगोगे हम आपको देंगे। Whatsoever cost maybe we will give. वही काम जो एक कीमत में करता था, The cost in one only thing, उसने डबल और ट्रिपल कीमत में उनके काम किए he did the work in triple multiplication. और सिर्फ 3 महीने के अंदर अंदर वो आदमी पहले से भी 2 गुना अमीर बन गया। In 3 months of time, this man became rich doubly. कभी कभी आप अपने दिमाग से चलता है, Sometimes you go by your brain. आपको लगता है यहाँ मैं बैठा हूँ ये मेरी मनमानी से होगा। You think where I'm sitting, it's by my own will. बाइबल में लिखा है, यहोवा कहता है मैंने आपको जो अजाली दिए हैं वो आपके मन की अनुसार नहीं, अपने मन के अनुसार दिए हैं। But the Bible says, that God says, I have given you shepherd not as per your mind, but my mind. मैं विश्वास करता हूँ And I believe, अगर आज ही आप इन वचनों को साथ लेके जाएंगे, if today you take these words along, आप अपने जीवन में प्रभु की आशीष को देखना शुरू करेंगे। you will start to see the blessing of the Lord in your life. अगर दुनिया में मरी है, If there is pestilence in the world, बीमारी है, there is sickness, मंदी है, oh, there is बिजनेस डाउन है, business is going down, लेकिन आपका कुछ भी खराब नहीं होगा। your nothing shall be wasted. वचन में लिखा है वो मुझे कहाँ चुराता है? Where does he make me? In green pastures. Hari Hari Charaha. वो मुझे हरी हरी चराहों में बोलिए चराता है। आपको जब आप जाएंगे खाने के लिए आपको सूखा घास नहीं मिलेगा, When you go to eat, you won't get the dry. आपके लिए हरी हरी चरांदे होंगी वहां जहां आप जाएंगे, You shall go and there shall be green pastures. क्योंकि परमेश्वर आपके साथ है। For God is with you. परमेश्वर आपकी रक्षा कर रहा है God is protecting you. और परमेश्वर आपको संभाल रहा है। God is taking good care of बोल you. दे यीशु मसीह के नाम की। Victory. थोड़ा ऊंची बोल दे यीशु मसीह के नाम। हालेलुया। Hallelujah. आप देखें मलाकी 3 उसका 8, 9 और 10 में पढ़ेंगे क्या लिखता है। Malachi 3, 8, 9 and 10. जो जिंदा है बोलो जय मसीह। हाँ, डरो मत। डरो मत, चुपचाप खड़े चुपचाप तुम खड़े डरो मत, चुपचाप खड़े रहो। यहोवा की निजात के क्या देखो, काम देखो। भूख लगी है, Oh, I am hungry. ओ बन रहा है उधर 2 मछली, 2 fish, small one. 5 रोटी 5 loaves of bread. और आदमी कितना बोलो, How much of multitude? 20,000। 20,000. लेकिन सबने खाया। All ate. आप भी खाएंगे यीशु मसीह के नाम से। You shall to eat. आप किसका मजा चखेंगे। You shall taste it. आमीन। Amen. कितने समझते हैं ये वचन आज का? प्रभु धरती पे अपना राज तुझे देना चाहता है। Yes. हालेलुया। The Lord wants to give you और his. वचन में लिखा है ये मुझे पसंद है It pleases me कि मैं राज तुझे दूं। that I give you kingdom. और लिखा है हे छोटे झुंड Oh, you small gathering. डर मत, Do not fear. क्योंकि मैं आपके साथ हूं। For I am with thee. आमीन। Amen. पढ़िए। क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है? हाँ, सवाल। क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है? और वचन में क्या लिखा है? देखो, 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 हाँ, तुम मुझको धोखा देते हो। तुम मुझको धोखा देते हो, लेकिन मैं जानता हूं तुम मुझको धोखा देते हो। क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है? देखो, देखो, तुम दान नहीं देते, तुम दशमांश नहीं देते, और तुम मुझे धोखा दे रहे हो और मुझसे मांग रहे हो, मैं कैसे दूं? आप
परमेश्वर के वचनों को तोड़ रहे हैं। You're breaking the word of the Lord. आप मेरी बात मान नहीं रहे। Oh, you're not obeying me. वो वचन आपके ऊपर आ नहीं सकता, The word cannot come upon you. वो आशीष आपके ऊपर खुल नहीं सकती Blessing cannot open upon you जब तक आप मेरे वचन को न माने। till the time you do not obey my word. क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है? और देखो तुम मुझे धोखा देते हो। आगे, See, तुम मुझे धोखा देते हो। जब तक आप परमेश्वर को धोखा देते रहेंगे, आप धोखा खाते रहेंगे। You shall be deceived if you try to deceive God. मैंने क्या बोला? जब तक आप परमेश्वर को धोखा देते रहेंगे, आप धोखा। इसने मेरा 5 लाख मान लिया, वो मेरा 2 लाख नहीं दे रहा, वो मेरा 50,000 नहीं दे रहा, ये मेरा 20,000 नहीं दे रहा, ये मेरा 10,000 नहीं दे रहा, ये मेरा 1 तोला नहीं दे रहा, 2 नहीं, 10 नहीं, 20 नहीं, दे नहीं रहा। आप परमेश्वर को धोखा देंगे और दुनिया आपको धोखा देती रहेगी। आपको अपने हक के लिए लड़ना पड़ेगा। अगर आप परमेश्वर की बात नहीं मानेंगे, उसमें भी आपको शैतान पजल कर देगा। ना तो आप प्रार्थना करें, ना बाइबल पढ़े, टाइम ही नहीं आपके पास। इतनी गरीबी है, काम 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 काम। गरीबी काम करने से नहीं जाती। Yes. Poverty doesn't go by the words. गरीबी जाती है परमेश्वर की आशीष के द्वारा। By the blessing of the Lord, the poverty finishes off. दिन आपकी मेहनत से नहीं बदलते, Then the days doesn't change by your work दिन hard. परमेश्वर की करुणा से बदलते By हैं। His grace it changes. लेकिन आपको परमेश्वर के साथ सीधा चलना है। You got to be straight with the Lord. क्या लिखा है आगे? ओ देखो तुम मुझको धोखा देते हो और तो भी हाँ? पूछते हो फिर भी तुम मुझे पूछते हो कि हमने किस बात में हाँ? किस बात में किस बात पे तुझे लूटा है? तुझे लूटा है, धोखा दिया है? दशमांश और उठाने की भेंटों में। और परमेश्वर कहता है तुम दशमांश और उठाने की भेंटों में। मतलब आपने कुछ उठाया, मान लो एक कंपनी से कार उठाई, उसका दशमांश प्रभु को देना होगा। अगर आपने किसी दुकान से सामान उठाया, उसका दशमांश प्रभु को देना होगा। अगर आपने जमीन खरीदा, उसका दशमांश प्रभु को देना होगा। उठाने वाली चीजों का दसबंद, ये मैंने पहली बार बताया आपको। खरीदने वाली वस्तुओं का दशमांश प्रभु चाहते हैं, वो दशमांश चाहिए। अगर आपने लोहा बेचा है, दशमांश चाहिए। सोना बेचा है, दशमांश चाहिए। बकरी बेचा है, दशमांश चाहिए। कुकड़ी बेचा है, दशमांश चाहिए। इससे भी नीचे जाता है, पदीने का दशमांश भी चाहिए। बाइबल में लिखा है तुम पदीने का दशमांश तो देते हो, लेकिन ऊंट को गायब कर देते हो। इतना ध्यान रखने वाला व्यक्ति कभी कंगाल नहीं होता। उठाने वाली चीजों का दशमांश। बाइक उठाया, मैंने तो किस्तों पे उठाया है। आप बुद्धिमान हो, घर लिया, किस्तों पे लिया, लेकिन कितने का लिया? किस्तें खत्म करनी है ना, नहीं तो लोग बीच में रोने लगते हैं। मैंने तो वो एग्रीमेंट किया है जी, 5 लाख दिया है, अब मेरा 20 लाख मर जाएगा। रो रहा है, नल की तरह पानी आ रहा है आंखों में। क्यों? क्योंकि परमेश्वर को धोखा दे रहा है और आप धोखा खा रहे हैं। इधर आके लंबी लंबी प्रार्थना कर रहा है, पादरी साहब के लिए खोए की बर्फी लेके आ रहा है। प्रार्थना से बेटा पैदा हुआ तो 1 क्विंटल लड्डू खत्म, फिनिश। ये क्या बात है भाई? आपकी नेक्स्ट जनरेशन स्टार्ट की है प्रभु ने। बड़े दशमांश प्रभु को दो, ताकि आपके बच्चे राजों की तरह इस पृथ्वी पे जिए। आप प्रभु को धोखा दे रहा है और धोखा खा रहा है। पढ़िए जरा इसको। दशमांश और उठाने की भेंटों में हाँ, तुम पर भारी शाप पड़ा है। हाँ,
क्यों आप परेशान हैं? बड़ी गाड़ी पे जा रहे हैं लेकिन परेशान है, कारण क्या है? इसको दोबारा पढ़िए। तुम पर भारी श्राप पड़ा है। क्या पड़ा है? श्राप। अगर आपका घर टूटा है, घर टूटने का मतलब आपके परिवार इधर उधर बिखरे हैं, बच्चे इधर उधर चले गए हैं, घर छोड़ के चले गए हैं, तो श्राप है आपके ऊपर, क्योंकि आपने परमेश्वर को धोखा दिया है। और आपने धोखा दिया है और शैतान ने एक ही किक किया और आपका सब कुछ खराब कर दिया। आपको लगता है नहीं नहीं मेरे घर वाला अच्छा नहीं, इसी वजह से मैं वक्री हूं। शराफ है भाई, घर वाला अच्छा है, मेरी घरवाली अलग रहती है, ये घरवाली अच्छी नहीं है, घरवाली बहुत अच्छी है, शराफ है। बच्चे घर छोड़ के चले गए हैं, आपको लगता है बच्चों के लिए प्रार्थना करो जी बच्चे घर वापस आ जाए, वापस आ जाए, वापस आ जाए, वापस आ जाए। बच्चे घर वापस नहीं आएंगे क्योंकि शराफ है। बच्चों पे कोई दिक्कत नहीं है, बच्चे विदेश गए हैं, फोन नहीं करते, प्रार्थना करो, प्रार्थना करो। शराफ है क्योंकि आपने धोखा दिया प्रभु को, आपने प्रभु को दिया नहीं, इसी वजह से आज परेशान है। 8 घंटा नहीं 10 घंटा काम करता है, आपकी बैक कमर दर्द करती है काम कर करके, खाना पूरा खा नहीं रहा, आप बीमार पड़ जाएगा। शराफ है आपके ऊपर, मैं नहीं कहता, बाइबल में लिखा, एक बार फिर पढ़ेंगे। तुम पर भारी श्राप पड़ा है। शराफ नहीं है, बोलता भारी श्राप है। भारी। आपको लगता है पादरी, आपको चर्च में पादरी दिखता है, पवित्र आत्मा दिखता नहीं है। वो जो आपकी सहायता में रहता है, वो जो आपको पूर्ण पकड़ता है, जो आपको बदलता है, आपके हालातों को बदलता है, वो जैसे पत्नी पति की सहायक होती है, ऐसे पवित्र आत्मा आपको सहायक के रूप में दिया गया, लेकिन आपने कभी उसको माना नहीं है, सुनता नहीं है उसकी। उसने 1000 बार बोला चर्च में हम टाइम पे जाएंगे, टाइम पे जाएंगे, फिर भी लेट आएगा। क्यों? क्योंकि श्राप है। आशीष आप ले नहीं सकता, प्रभु की कोई योजना नहीं थी। इजरायली 40 साल जंगलों में भड़के, उनके दादा परदादा वहीं मर जाएं, प्रभु की कोई योजना नहीं थी, वैसे ऐसा हो गया। क्यों? अपनी मनमानी से चल रहा था, कभी चर्च आ गया, कभी चर्च नहीं आया, कभी प्रार्थना की, कभी प्रार्थना नहीं की। आप बच्चों की मानना है, आपको बड़े होना है, आप छोटे नहीं हैं। आप परमेश्वर को धोखा दे रहे हैं। अगर आप प्रभु के पीछे चल हो रहे हैं तो अच्छे ढंग से चलो कि प्रभु आपसे शर्माए ना और दूर से देके बोले आ बेटा, आ बेटा, आ बेटी, ओ मेरी बेटी है, आने दो। प्रभु ऐसा ना बोले रोक दो, ये मेरा बेटा नहीं है, ये मेरी बेटी नहीं है। आपने अपने जीवन का सत्यानाश कर रखा है, ना तो प्रार्थना है, मनुष्यों के ऊपर भरोसा है और चोरी कर रहा है, और प्रभु के साथ भी वफादार नहीं है। आपको बदलना पड़ेगा। प्रभु आपके लिए स्वर्ग खोल देगा, स्वर्ग की खिड़कियां खोल देगा, ऐसा बाइबल में लिखा है। और जो विश्वास करते हैं वो राजा की तरह जिएंगे आज के बाद यीशु मसीह के नाम से। तुम पर भारी श्राप पड़ा है, क्योंकि तुम मुझे लूटते हो, वरन क्या 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 करते हो? क्योंकि तुम मुझे लूटते हो। ऐसे व्यक्ति को क्यों लूटना जो शोर मचाए? ऐसे व्यक्ति को लूटो जो शोर ना मचाए। खुदा का दशमांश खाओ, वो शोर नहीं मचाता। खुदा का पैसा खाओ, वो शोर नहीं मचाता। अगर आप यीशु के लहू की वाचा को मानते हैं तो आप परमेश्वर को धोखा नहीं देंगे। आप अगर यीशु के लहू की वाचा को मानते हैं, आप दशमांश नहीं खाएंगे, आप गाड़ी का बस का किराया देके आएंगे, ईमानदारी से आएंगे। ये ईमानदारों का परमेश्वर है। अगर आप बिना बस का किराया दे के आए हो तो ध्यान रखो, अभी से प्रार्थना करो, अगले संडे मन बनाओ मैं अपना किराया दे के आऊंगा।
क्योंकि यहां जिस परमेश्वर की महिमा हो रही है वो चोर परमेश्वर नहीं है, चोरों का परमेश्वर नहीं है, वो गुनाहगार और पापियों का परमेश्वर नहीं है, वो गुनाह माफ करने वाला और धर्मियों का परमेश्वर है। आप कितने भी गुनाह करो, परमेश्वर को कोई फर्क नहीं पड़ता, नुकसान आपका ही होगा। भुगतेंगे आप, रोएंगे आप, चिल्लाएंगे आप, भूखे सोएंगे आप, शर्मिंदगी सहेंगे आप, लेकिन परमेश्वर आपके लिए स्वर्ग की खिड़कियां खोलना चाहता है। पढ़े क्या लिखा है? क्योंकि तुम मुझे लूटते हो, वरन सारी जाति ऐसा करती है। तुम मुझे क्या करते हो? लूटते हो। क्योंकि परमेश्वर शोर नहीं मचाता, खूब लूटो। 2 लाख आया, 20,000 नहीं देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि परमेश्वर को लूटो, वो शोर नहीं मचाता। लेकिन आज मचा रहा है अपने दास के द्वारा और बोल रहा है, तुम मुझे धोखा दे रहे हो, तुम ठग हो, तुम फ्रेबी हो, धोखेबाज हो। परमेश्वर धोखेबाजों का परमेश्वर नहीं है। रिपीट करिए इसे, क्योंकि तुम मुझे लूटते हो। लूटते हो तुम मुझे। आप ध्यान से सोचो, आपने कितनी बार लूटा है? सब लूटते हैं। और आज परमेश्वर कहना चाहता है, अब की बार लूटोगे तो लूटे जाओगे। ध्यान रखना। पहले आप लूटते थे, मैं खामोश था, लेकिन अब लूटोगे तो लूटे जाओगे। ध्यान रखना। आगे बढ़े। वरन सारी जाति ऐसा करती है। सारी जाति ऐसा करती है, वो बोलता है। आगे, सारे दशमांश। कुछ लोग ऐसा सोचते हैं, यार आज ना भी आते तो चलता था। हाँ? इतना सख्त, इतना वादा, इतना जबरदस्त। लेकिन आप नेगेटिव क्यों सोचता है? आप पॉजिटिव सोचो कि आप बादशाह के बच्चे बन के जिएंगे इस पृथ्वी पे। शैतान आपको डीमोटिवेट करता है, लेकिन प्रभु का वचन आपको बोलता है, मैं आपको इतना ऊंचा उठा दूंगा, लोग देखेंगे आप इतनी ऊंचाइयों पे कैसे चले गए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सारे दशमांश हाँ। भंडार में ले आओ। क्या? सारे दशमांश कहां लेके आओ? भंडार, प्रभु के घर में लेके आओ। आप दशमांश गरीबों में बांट रहा है, फोटो बना के डाल रहा है मीडिया पे। क्या कर रहा है? ये मिस्टर कुमार दान कर रहा है, वाह दान कर रहा है, लेकिन उसे ये नहीं मालूम ये प्रभु को धोखा दे के दान कर रहा है। प्रभु का ही दान कर रहा है, प्रभु का, प्रभु को, और केसर को। अभी मैं सुनाऊंगा, उसकी बात याद रखना। हाँ, बोलो मछली। बोलो। आप लगता खाते नहीं, जो इतनी अच्छे तरीके से बोल नहीं रहे। हाँ बोलिए। मछली। हाँ, थैंक यू। आप तो खाते लग रहे हैं। यस। पढ़िए जरा। सारे दशमांश। हाँ, सारे दशमांश। सारे दशमांश। कितने दशमांश? सारे। आपके घर में अमरूद लगा है ना, उसका दशमांश भी लेके आओ। इधर बहुत लोग हैं खाने के लिए, बहुत स्टाफ है। अमरूद भी आप खाली अकेले ही खा जाता है। हाँ? ऐसा लिखा है न्यू टेस्टामेंट में, आपको दिखा सकता हूं। पूरी दुनिया के लोग मेरा ये प्रचार सुनेंगे, बहुत शेयर करेंगे। ये देखो, आलोचना तो होगी, लेकिन वो पास्टर देओल की नहीं, खुदा के वचन की होगी, क्योंकि मैंने तो खुदा का वचन पढ़ा है। हालेलुया, हालेलुया। हो सकती है। तैयार रहना पड़ेगा ऐसी बातों के लिए भी आपको। हालात कैसे भी हो, हालातों के ऊपर अपना ध्यान मत लगाएं। मैं सच में कहता हूं, प्रभु को धोखा देना बंद करो, आप कभी नहीं मरेंगे। चाहे 20 डॉक्टरों ने लिख के दिया आप मरने वाला है, आप फिर भी जिंदा रहेगा यीशु मसीह के नाम से। हाँ। सारे दशमांश। हाँ, सारे दशमांश भंडार में ले आओ। भंडार में लेके आओ।
कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। भोजन वस्तु रहे, सारे प्रबंध किए जाएं, एक एक प्रबंध। आज देखो पंखा चल रहा है, तस्वीर आ रही है, आवाज क्लियर आ रही है, क्या है ये? प्रबंध है। हाँ, सारे दशमांश भंडार में ले आओ, सारे दशमांश भंडार में लेके आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे, भोजन रहे। और सेनाओं का यहोवा यह कहता है, सेनाओं का यहोवा यह कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो। आहा, तुम मुझे कभी परख के देखना, जान भी दे दूंगा। ये डायलॉग आपने बहुत बार सुना होगा, लेकिन जब जरूरत पड़े तो खोजने से भी नहीं मिलता आदमी। जब मुसीबत आए आपको कोई नहीं मिलेगा। बस मैं आ रहा हूं, मैं 2 घंटे में आ रहा हूं, मैं 4 घंटे में आ रहा हूं, बस मैं आ ही रहा हूं, मैं बस जा ही रहा हूं। लेकिन प्रभु ऐसा नहीं करेंगे। जब भी आप पुकारेंगे वो आपके साथ रहेंगे, आपके साथ होंगे। सैनों का यहोवा क्या कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो, ऐसा करके मुझे परखो, मुझे लूटो ना, मुझे धोखा ना दो, मुझे परखो। मैं क्या करूंगा आपके लिए? सुनिए, कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूं। अपरंपार बोलो, अपरंपार। मेरे उत्ते अपरंपार वर्षा हो रही है। मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोलकर, आकाश के झरोखे खोलकर, बोलो मेरे लिए आकाश के झरोखे खोल दिए गए। आकाश के झरोखे खुल गए हैं, मेरे लिए खुल गए हैं। मैं विश्वास करता हूं। खोलिए खुल गए हैं। हाँ, सच में बोलो आप। अगर बन जाए आज के झरोखे खुल जाएंगे, आप प्रभु के अजीबोगरीब कामों को देखेंगे अपने जीवन में, यीशु मसीह के नाम से। हाँ, पढ़िए, ये खत्म होने वाला है। कि आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार, तुम्हारे ऊपर, इधर उधर नहीं, अगल बगल में नहीं, तुम्हारे ऊपर सीधा निशाना लगाएगा आकाश से, ठा। उसका निशाना, उसका पार्सल गुम नहीं होता। जो आपके नाम का डिलीवर किया जाएगा स्वर्ग से, वो आपको ही मिलेगा। उसका पिन कोड गलत नहीं होता, एड्रेस गलत नहीं होता कि आपका था यार वो ले गया, कभी नहीं होता। ये गुम हो गया है, बीच में से निकाल के वो कागज भर दिया, ऐसा भी नहीं होगा। जो आपके नाम का स्वर्ग से पार्सल डिलीवर किया जाएगा, वो आपको मिलेगा यीशु मसीह के नाम से। और स्वर्गीय यहोवा परमेश्वर डिलीवर करने वाला है आपके लिए पार्सल। आप माइंड सेट करो, मैं गरीब नहीं हूं। बोलो, मैं गरीब नहीं हूं। मैं गरीब नहीं हूं। मेरे हालात गरीब नहीं है, मेरा घर गरीब नहीं है, बच्चे गरीब नहीं है, बिजनेस गरीब नहीं है। प्रभु ने मुझे बरकत दी है। आज सच में स्वर्ग मेरे लिए खुल चुका है, सीधा मेरे ऊपर निशाना लगा है, मेरा पार्सल आ गया वहां से। मैं ग्रहण करता हूं यीशु मसीह के नाम से। मैं प्रभु को दूंगा। आमीन। जो मेरी बातों पे विश्वास करेंगे वो इसका फल खाएंगे यीशु के नाम से। हालेलुया। मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूं कि नहीं। परखो। आप तो धोखा दे रहे हैं मुझको, हैं? आप मुझे परखो भाई। ऐसा बाइबल में कहीं नहीं लिखा गया कि आप 40 फास्ट करो और मुझे परखो। ऐसा बाइबल में कहीं नहीं लिखा गया। आप पूरा बाइबल पढ़ो और मुझे परखो नहीं लिखा गया। एक ही बार लिखा गया है मुझे परखो। कहां? बस धोखा देना बंद करो। जो प्रभु का है वो प्रभु को दो, दशमांश दो, टाइट दो, ऑफरिंग दो, सीड दो और मुझे परखो मैं आपके लिए क्या करूंगा। एक बार यीशु मसीह जा रहे थे। Jesus was going
और चेले भी साथ में थे। and the disciples were along with him. तो हुआ क्या, What happened? एक आदमी पीछे से आया A man came from behind और पतरस से बात की। and had a talk with Peter. हेलो श्रीमान जी, Sir, hello. यू आर पीटर? Are you Peter? यस। Yes. क्या आपके गुरुजी अठानी देते हैं? Oh, does your teacher give the tax? अठानी क्या है? टैक्स है, टैक्स। This is a tax. टैक्स वाला आदमी आया और पूछ रहा कि आप टैक्स देते हैं? Tax collector comes and he says, do you pay tax? उसने बोला हाँ देते हैं मेरे गुरुजी टैक्स। And he said, yes, yes, he gives. उसने बोला फिर इतना बना है दे दो। And this is what has come to conclusion, give it. और पतरस गुरुजी के पास गया Now Peter goes to the teacher. और बोला गुरुजी, Oh, teacher. वो टैक्स वाला आदमी आया है The tax collector came. और पूछ रहा है कि आप टैक्स देते हैं? He's asking, do you pay tax? और यीशु ने पूछा टैक्स कौन देता है? Jesus asked, who paid taxes? क्या अपने देते हैं कि पराये देते हैं? Does the sons pay tax or the strangers? और उसने बोला जी टैक्स तो पराये देते हैं। And he said, the tax is paid by the strangers. यीशु ने बोला भाई ठीक है इसका टैक्स इनको दे दो। Jesus said, then pay it. तो पतरस खड़ा देख रहा है, यीशु के मुंह की तरफ देख रहा है। And now Peter is looking to the face of Jesus. यीशु ने बोला Jesus said, ऐसा कर पीटर, oh Peter, तुम झील के पास जाओ, go to the river वहां कुंडी डालो, and put in a hook वहां मछली आएगा। a fish you will catch. जो मछली आप पहले पकड़ेगा The fish first you catch. उसका मुंह खोलना, Open the mouth of the fish. उसमें 1 रुपए का सिक्का होगा, A coin shall be in its mouth. वो सिक्का निकालना और टैक्स दे देना। Take out the coin and pay both taxes. बड़ी अजीब बात है। Amazing thing. आप कर्जे के नीचे डूबे हैं, इधर मछली आपके लिए कर्जा चुकाने के लिए रुपया लेके आ रही है। You are drowning under debts and now the fish comes to pay your taxes. मैं यही बोल रहा हूं, आपको ये चिंता नहीं करना रुपया आएगा कहां से। You need not worry where your money shall come from. जब परमेश्वर आपके ऊपर मेहरबान हो गया तो रुपया मछली भी लेके आएगी। If God is pleased with you, the fish shall get to you the भले ही coin. आप मछली खाओ तो भी रुपया लेके आएगी। If you eat the fish, even it shall bring the money. मैं आपको यही कहना चाहता हूं, And I want to tell you this. आप ये मत सोचिए दरवाजा कहां से आएगा, You do not think नया कपड़ा कहां से आएगा, where does the clothes come from? गाड़ी कहां से आएगा, Vehicle it shall come from. जूता Where? कहां से आएगा। Where shall the shoes come? आप गलती मत करना, Do not make a mistake. नहीं तो जूता आएगा। Oh, the shoes shall show. आप सीधा सीधा चलो, Walk straight. आप खुदा की नंट को ले गए। You are receiving the anointing of the Lord. तो वो गया, He went. लेकिन वो रास्ते में क्या कर रहा था? What is was doing on the way? मछली आ जाए प्रभु जी, Oh, let मछली me आ जाए catch प्रभु the जी। fish. और Oh, मछली आ जाए, let me catch आ the जाओ आ fish. जाओ मछली। Come, fish. यीशु मसीह ने नाचा, आ जाओ। Come, fish. Jesus वो क्या said. करता गया? Did he go like this? नहीं 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 नहीं, No, no. उन्हें कोई अरदास नहीं की थी। He did not pray for उन्हें it. इतना नहीं क्या हाँ हाँ भाई होगा कि नहीं होगा। He did not even think whether it will उन्हें क्या happen. जेड़ा वचन मैनू दिता गया ओ होवेगा होवेगा ते होवेगा। What the word is given unto me, it shall happen, and it shall surely. जेड़ा वचन अज थानू दिता गया ओ होवेगा होवेगा ते होवेगा। What the word you are given, it shall surely be happening. अपने बड़े विश्वास ना इसनु ग्रहण करिए। Take it with your great faith. पतरस जब उत्थे जा रहा सी वो परेशान नहीं सी। He was not distressed as Peter was going. थानू भी परेशान होने की जरूरत नहीं है आज। You do need not be worried. आराम ना शांति ना जाओ ते विश्वास करो, आगे लिए स्वर्ग खोल दिता गया है। Go in peace and think that your whole heaven is open for you. आराम से ना जाओ ते बड़े विश्वास ना रखो मैं दुनिया का अमीर धनी व्यक्ति हाँ। Go in ease and say I'm the most rich man of the world. ते पश्चाताप करो कि मैं आगे तो परमेश्वर नु धोखा नहीं देंगा। And repent, I shall not deceive God. मैं परमेश्वर दे नाल वफादारी ना चलांगा। I shall walk in obedience to और God. तुसी वफादारी ना चलोगे ते परमेश्वर दी महिमा नु देखोगे। If you shall walk in obedience, you shall see the glory of बोलो मैं God. इस धरती दा राजा हाँ। Say, I am the king of this earth. परमेश्वर ने जो बरकत मैनू दिती है The blessing given unto me by मैं God, उसनु रिसीव करदा हाँ, I receive. मैं उसनु ग्रहण करदा हाँ। I take it. कर्ज दे बंधन जा रहे हैं, Curse bondages are बंधन good. जा रहे हैं, Bondages are बंधन good. जा रहे हैं, Bondages are बंधन good. जा रहे हैं, Bondages are good. जा रहे हैं, Good. जा रहे हैं, Good. जा रहे हैं। Good.
कर्ज दे आत्मा जा रहे हैं। The spirit of debt is going. मैं आजाद किया गया हाँ। I'm delivered. मैं फ्री किया गया I'm हाँ। free. सारियां चीजां मेरे हक विच आ रही ने। All things are coming in my life. यीशु मसीह दे नाम दे विच। In the name of Jesus Christ. आमीन। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਣ ਲਈ ਹੁਣੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਸਾਡਾ YouTube ਚੈਨਲ ਪਾਸਟਰ ਦਿਓਲ ਖੋਜੇਵਾਲਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਪਾਸਟਰ ਦਿਓਲ ਖੋਜੇਵਾਲਾ।